الحمدللہ، وہ ذات جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ہماری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، جو ہمارے ہر حال سے واقف ہے، جو ہمیں دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے اور ہماری خاموشیوں کو بھی جانتا ہے۔ اس پاک پروردگار کی محبت تو اپنے بندے کے لیے 70 ماؤں سے بھی بڑھ کر ہے۔ جب وہ کسی سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، کسی کو خاص کر لیتا ہے، کسی کو چن لیتا ہے، تو اسے تہجد کی توفیق عطا کرتا ہے۔ اگر انسان سمجھے تو بہت بڑا اعزاز ہے تہجد، بہت بڑی نعمت ہے تہجد، بہت بڑا خاص کرم ہے رب کا کہ وہ اپنے بندے کو اپنے قریب بلاتا ہے، موقع دیتا ہے کہ اس کا بندہ اس کے سامنے اپنی حاجات رکھے، اپنی التجائیں پیش کرے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کن لوگوں کی تہجد قبول کرتا ہے، کن لوگوں کو تہجد کی توفیق دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کن کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے اور کن کی دعاؤں کو رد کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بارے میں بات کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی قبولیت کے فیصلوں پر بات کریں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ جتنی بھی اسلامک ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں انہیں لائک بھی لازمی کیا کریں اور کمنٹ سیکشن میں اچھے اچھے کمنٹس بھی کیا کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر ان اسلامک ویڈیوز کو شیئر بھی لازمی کیا کریں۔ یہ تہجد کیا ہے؟ یہ تہجد صرف رات کا قیام نہیں، یہ صرف چند رکعتوں کی نماز نہیں، یہ ایک دروازہ ہے، رب تعالیٰ کے قرب کا دروازہ۔ یہ ایک لمحہ ہے جب آسمانوں پر رحمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ یہ وہ عبادت ہے جس میں آنسو الفاظ بن جاتے ہیں، سسکیاں دعاؤں کا روپ دھار لیتی ہیں اور سجدے محبت کی زبان بن جاتے ہیں۔ یہ وہ عبادت ہے، وہ لاڈلی عبادت ہے، وہ عظیم عبادت ہے جس میں بندہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے۔ وہ گھڑیاں جب ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے مگر کچھ خوش نصیب ایسے ہوتے ہیں جو جاگ کر اپنے رب سے سرگوشیاں کر رہے ہوتے ہیں، اس کے سامنے گریہ زاری کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر رات اپنے بندے کو پکارتا ہے، فرماتا ہے کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اسے عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے معافی طلب کرے میں اسے معاف کر دوں، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اسے قبول کر لوں۔ پتہ ہے یہ ہر رات جو وقت ہوتا ہے تہجد کا خاص وقت ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو پکار کر مانگنے کے لیے کہتا ہے۔ ذرا سوچیں، تصور کریں، ہمارا رب ہمیں بلا رہا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہم اس سے مانگیں، اس کے سامنے جھکیں، اس سے اپنی حاجات بیان کریں، اور ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم سوتے رہتے ہیں، دنیا کے خواب دیکھتے ہیں، غفلت میں پڑے رہتے ہیں، اور وہ عظیم لمحہ، وہ قبولیت کا وقت ہم کھو دیتے ہیں۔ یہ سوال اکثر لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ اگر ہم گناہ گار ہیں تو کیا ہماری تہجد قبول ہوگی؟ کہیں ہمارے اعمال ہمیں تہجد کی قبولیت سے محروم تو نہیں کر رہے؟ لیکن یہ جان لیں، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو تہجد کی توفیق دی ہے تو یہ خود اس بات کی نشانی ہے کہ وہ آپ کو رد نہیں کر رہا، آپ کی دعاؤں کو، آپ کی عبادات کو رد نہیں کر رہا، وہ آپ کو قبول کرنے کے بہانے ڈھونڈ رہا ہے۔ اس نے آپ کی دعاؤں کو سننے کے لیے، آپ کو اپنے قریب لانے کے لیے تہجد کو ایک ذریعہ بنایا ہے تاکہ اس کا بندہ اس کے قریب ہو سکے، اس سے مانگے اور وہ اسے عطا کرے۔ یہ کبھی نہ سوچیں کہ ہم اتنے گناہ گار ہیں وہ ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا، ہماری عبادتوں کو قبول نہیں کرے گا۔ اللہ چاہے تو ہزاروں گناہ معاف کر دے، اللہ چاہے تو کسی ایک رات کی توبہ پوری زندگی کے گناہوں کو
धो डाले। अल्लाह चाहे तो किसी के एक सजदे को इतनी कबूलियत अता करे कि वो बंदा वलियों में शुमार हो जाए। हमें अपने गुनाहों से ज़्यादा अपने रब की रहमत पर नज़र रखनी चाहिए। वो रहमत जो समंदर की लहरों से भी ज़्यादा वसी है, जो आसमानों से ज़्यादा बुलंद है और जो कायनात की वुसअतों से ज़्यादा बेइंतहा है। क्या हर दुआ कबूल होती है? ये सवाल भी अक्सर जहन में आता है कि हम तहज्जुद में रो रो कर दुआएं मांगते हैं, फिर भी कबूल नहीं होती, क्यों? देखें, अल्लाह दुआ को 3 तरीक़ों से कबूल करता है। या तो फ़ौरन कबूल कर देता है क्योंकि वो जानता है कि ये चीज़ हमारे लिए बेहतर है, या किसी आजमाइश को टाल देता है क्योंकि बाज़ औक़ात हम वो मांग रहे होते हैं जो हमारे लिए नुकसानदेह हो, हमारे लिए अच्छा ना हो, और अल्लाह हमें बचा लेता है और इन दुआओं के सिले में हमें बहुत बड़ी आजमाइशों से बचा लेता है, बहुत बड़ी बलाओं को टाल देता है, या फिर क़यामत के दिन के लिए ज़ख़ीरा कर देता है। और वो वक्त आएगा जब हम कहेंगे कि काश हमारी कोई दुआ दुनिया में कबूल ना होती और सब कुछ आखिरत में ही मिलता। लिहाजा अगर कोई दुआ फ़ौरन पूरी ना हो, कबूल ना हो, तो ये मत सोचें, ये मत समझें कि अल्लाह ने कबूल नहीं की, बल्कि ये सोचें कि अल्लाह ने इसे कहीं महफूज कर लिया है। और तहज्जुद तो वो इबादत है जिसमें दुआएं मांगने से मौजज़े होते हैं। कितने ही लोग ऐसे हैं जिनकी ज़िंदगियां तहज्जुद ने बदल दी हैं। कितने ही लोग ऐसे हैं जिनकी दुआएं तहज्जुद में पूरी हुई। कितने ही लोग ऐसे हैं जिन्हें दुनिया ने ठुकरा दिया, मगर तहज्जुद के सजदों ने उन्हें अल्लाह से मिलवा दिया, अल्लाह के करीब कर दिया। तहज्जुद से नामुमकिनात मुमकिनात में बदल गए। आप देखें, आपको ऐसे हज़ारों वाक़यात मिलेंगे कि जिनमें लोग ये समझते थे कि हमारी दुआएं कभी कबूल नहीं होंगी और ये चीज़ तो नामुमकिन है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये चीज़ तो हमें मिल ही नहीं सकती। लेकिन फिर उन्हीं लोगों ने तहज्जुद पढ़ी, अल्लाह से तहज्जुद में दुआएं मांगी, तो ऐसे ऐसे अल्लाह ताला ने असबाब बनाए और ऐसे ऐसे तरीक़ों से अल्लाह ताला ने अता किया कि वो ख़ुद हैरान रह गए। बस अल्लाह ताला के कुन कहने ही की तो देर होती है और फिर सब कुछ हो जाता है। यहाँ तक कि आप अंबिया अलैहिमुस्सलाम की ज़िंदगियों को देखें, सब के सब तहज्जुद गुज़ार थे। हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जिनकी खातिर अल्लाह ताला ने पूरी कायनात खल्क कर दी, और वो नबी जो अल्लाह के हुक्म के बग़ैर, अल्लाह की वही के बग़ैर कलाम नहीं करते, जो सारी दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजे गए, वो भी रातों को तहज्जुद में रोते, क़याम करते, सजदे में घंटों गुजार देते। तो हम कौन हैं जो तहज्जुद से गाफिल हो जाएं? जो रात की तारीकी में अल्लाह के दर पर आ जाता है ना, अल्लाह उसे कभी महरूम नहीं करता, कभी खाली नहीं लौटाता। जो रात की खामोशियों में अल्लाह से मुनाजात करता है, अल्लाह उसे कभी तन्हा नहीं छोड़ता। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में सुकून आ जाए, अगर आप चाहते हैं कि आपकी परेशानियां ख़त्म हो जाएं, अगर आप चाहते हैं कि आपका रब आपसे राज़ी हो जाए, आपको अपने करीब कर ले, तो तहज्जुद को अपना मामूल बना लें। याद रखें, तहज्जुद मोहब्बत की नमाज है, तहज्जुद कबूलियत की घड़ी है। तहज्जुद वो लम्हात हैं जब ज़मीन वाले आसमान वालों से आगे निकल सकते हैं। तहज्जुद वो इबादत है जो तकदीर को बदल सकती है। तो है वो लोगों जो परेशान हो, जो गुनाहों में डूबे हुए हो, जो मायूस हो, मत सोचो कि तुम्हारी तहज्जुद कबूल होगी या नहीं, तुम्हारी दुआएं कबूल होंगी या नहीं।
बस जाकर अपने रब के सामने झुक जाओ, उसके सामने रो दो, उससे माफ़ी मांग लो, उससे वो सब कुछ मांग लो जो तुम्हारे दिल में है। अल्लाह ताला बहुत जल्द तुम्हें वो अता करेगा जो तुम्हारे वहमों गुमान में भी नहीं होगा। वो तुम्हारी दुआओं को सुन रहा है, वो तुम्हारे आंसुओं को गिन रहा है, वो तुम्हारे दिल की हर धड़कन को जान रहा है। बस तहज्जुद को अपना लो, तहज्जुद से मोहब्बत कर लो, तहज्जुद को अपनी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा बना लो और फिर देखो कैसे तुम्हारी दुआएं पूरी होती हैं, कैसे तुम्हारी दुनिया और आखिरत संवरती है और कैसे तुम्हारा रब तुम्हें अपने करीब कर लेता है। जिसने तौफीक दी है ना, वो अता भी कर सकता है क्योंकि वो हर चीज़ पर कादिर है। तो बस इंतज़ार मत करें, वक्त ज़ाया मत करें, सजदा करें, आंसू बहाएं, अल्लाह से मांगें। वही तो है जो हर दुआ को सुनता है, वही तो है जो हर गुनाह को मुआफ़ कर सकता है, वही तो है जो हर नामुमकिन को मुमकिन बना सकता है। अल्लाह ताला कादिर है, वो बहुत मेहरबान है। अल्लाह ताला वो है जो ज़ख्मों पर मरहम रख देता है, जो टूटे दिलों को जोड़ देता है, जो आंसुओं को हीरे बना देता है। वही है जो रात के अंधेरों में उठने वालों को दुनिया के उजाले अता करता है। अगर शैतान आपके दिल में वसवसा डाले कि तुम्हारी तहज्जुद कबूल नहीं हो रही, तुम गुनहगार हो, तुम्हारी दुआएं रद्द हो रही हैं, तो फ़ौरन अपने रब को याद करो और कह दो कि जिसने मुझे तहज्जुद के लिए उठने की तौफीक दी है, वही मेरी इबादत को भी कबूल करेगा। कुछ लोग परेशान होते हैं कि पता नहीं हमारी तहज्जुद कबूल हो रही है या नहीं, कहीं हम गुनहगार हैं, कहीं हम नाफरमान हैं, कहीं हमारा रब नाराज़ तो नहीं। मगर याद रखें, अल्लाह ताला जिसे तौफीक देता है वही उसकी बारगाह में हाजिर होता है। अगर अल्लाह ने आपको तहज्जुद की हिम्मत दी है, अगर तहज्जुद का ख्याल डाला है आपके दिल में, तो समझ लें कि वो आपसे राज़ी होने का कोई बहाना ढूंढ रहा है। कबूलियत का फ़ैसला अल्लाह के हाथ में है। वो चाहे तो लाखों गुनाह बख्श दे एक ही लम्हे में, वो चाहे तो किसी के सजदों को रद्द कर दे। वो गुनाहों को देखकर इबादत नहीं ठुकराता, वो ना ही नेकियों को देखकर इबादत कबूल करता है। वो तो दिलों की नीयतों को जांचता है। दुआ है पाक परवरदिगार से कि वो हम सबको तहज्जुद गुज़ार बनाए, तहज्जुद का ख़ास एहतमाम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, हमारी परेशानियों को दूर फ़रमाए, हमारे गुनाहों से दरगुज़र फ़रमाए, हमारी दुआओं को अपनी बारगाह अज़ीम में कबूलियत का शर्फ़ अता फ़रमाए और हमारे यकीन को, हमारे भरोसे को इतना बढ़ा दे कि हम अल्लाह ताला की ज़ात से हमेशा अच्छा गुमान रखें, क्योंकि अल्लाह ताला ख़ुद फरमाता है कि तुम मुझसे जैसा गुमान रखोगे मुझे वैसा ही पाओगे। अल्लाह ताला हमारी टूटी फूटी इबादतों को अपनी बारगाह अज़ीम में कबूलियत का दर्जा अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।